हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब? चलो, तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट हमने क्वेश्चन 10 और 9 को कंबाइन करते हुए 3 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए थे। आज हम फोर्थ देखेंगे। ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी होल स्क्वायर। हियर स्टार फ्रॉम क्यू क्रॉस क्यू टू क्यू इज अ बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड बाय ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी होल स्क्वायर। सबसे पहले कम्यूटेटिव की बात करते हैं। फॉर कम्यूटेटिव, here we have to check a star b is equal to b star. For that I take a is equal to 1 and b is equal to 2. Now put a and b both are in LHS and RHS side. Therefore a star b is equal to 1 star 2 is equal to 1 minus 2 whole square. That means we get minus 1 whole square, and finally we get 1. And similarly on RHS side, b star is equal to 2 star 1 is equal to 2 minus 1 whole square. So finally we get 1 square is equal to 1. So you can see that the both side are equal or both side are same. That means LHS is equal to RHS and star is a commutative. And now for associative we have to check a star b in a bracket star c is equal to a star into bracket b star c. For that I take a is equal to 1, b is equal to 2 and c is equal to 3 as usual, as I take in previous questions. Now put these 3 values in LHS and RHS both side. So firstly I put in the LHS side. So we get in a bracket a star b star c is equal to 1 star 2. Firstly we find out the value for 1 star 2, which we have already find in our commutativeness. So 1 star 2 gives us 1. Final answer 1. So taking 1 star with 3. So finally we get 1 minus 3 whole square. So the final answer is 4. Now let's see for RHS side. A star bracket b star c is equals to 1 star bracket 2 star c. Firstly we solve for 2 star 3. That means 2 minus 3 whole square. So finally we get minus 1 square is equal to 1. Taking 1 star 1. Taking 1 star with 1 itself. So 1 minus 1 whole square. So finally we get 0. So you can observe that the both sides are not equal or not same. Therefore LHS is not equal to RHS and star is not associative. Okay. Now finally we talk about for identityness or for identity element. Here small e is the identity of star if a star is equal to a is equal to e star f. This is the condition for identityness. Okay. So let's see. That means a minus e whole square is equal to a is equal to e minus a whole square. Just compare with our original binary operation. We may write a minus e or replace small b by small e. Replace small b by small e. Okay. So we put the value small e replaced by small b. So we get a minus e whole square is equal to small a is equal to e minus a whole square. Okay students, you can observe here. If you observe here, if we put e is equals to suppose 0, if we put small e is equal to 0, okay, in this equation, then we get a minus 0 whole square. So finally we get a square. And similarly on RHS side, if we put here 0, so 0 minus a whole square, that means final we get a square. But we want small a. Okay, we don't get small a. Why? Because of if we put 0, then we get finally a square. Okay, हमें क्या चाहिए था? स्मॉल a चाहिए था, बराबर। LHS और RHS दोनों साइड से हमें स्मॉल a ही कंपलसरी, ये हमारी कंडीशन है इसलिए। बट यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है? e की वैल्यू हम 0 रिप्लेस करेंगे, मतलब 0 पुट करेंगे, तो फाइनल हमें a स्क्वायर मिल रहा है। ऑन LHS एंड ऑन RHS बोथ साइड we get a square, but which is not possible for our condition of identityness. So but there is no possible value of e where a minus e whole square is equal to e minus a whole square, दोनों के इक्वल small a मिल सके. Okay, hence star has no identity element and I hope you understand. मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ आप समझ गए होंगे। अगर आप समझ गए होंगे तो कंटिन्यू कीजिए। ओके, प्रोसीड। Number 5. A star b is equal to ab by 4. Here star from q cross q to q is a binary operation defined by a star b is equal to ab by 4. Firstly we check for commutative. Here we have to check a star b is equal to b star f. For that I take a is equal to 1 and b is equal to 2 as usual, which I take in previous many examples. So a star b is equal to 1 star 2 is equal to 1 into 2 by 4. Because हमें क्या करना है, तो 1 star 2 को a star b मतलब जो हमारा ओरिजिनल ऑपरेशन है उसके साथ कंपेयर करेंगे, तो जो स्मॉल है उसके रिप्लेस में 1 और स्मॉल b के रिप्लेस में 2 पुट करना है, मतलब 1 into 2 by 4. सो वी गेट हाफ.
Similarly for RHS side, B star A is equal to 2 star 1 is equal to 2 into 1 by 4. So here also we get half. That means LHS is equal to RHS, star is a commutative. And now for associative, here we have to check A star. That means LHS is equal to RHS. We have to check these one. So for that, I take A is equal to 1, B is equal to 10, C is equal to 3. That's it. Now put all these values in our both side. Firstly, for LHS side, in a bracket A star B star C is equal to, in a bracket 1 star 2 star 3. So here we apply our operation. So we get 1 into 2 by 4, we get half. And finally we apply for half star 3. Finally we apply our operation for half star 3. So we get half into 3 by 4. So ये जो T2 है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, मतलब 4 into 2 8, 3 by 8. And on RHS side, A star bracket B star C is equal to 1 star bracket 2 star 3 is equal to 1 star 2 star 3 को हमारा ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 into 3 by 4. So we get 3 by 2. So 1 star 3 by 2 is equal to 1 into 3 by 2 whole divided by 4. और यहाँ पे भी 2 डिनोमिनेटर में आ जाएगा. So finally we get 3 by 8. That means LHS is equal to RHS and star is a commutative and also associative. Now for identity element. Here small e is the identity for star. If A star is equal to A is equal to E star A, that means AE by 4 is equal to A is equal to EA by 4. Okay. अभी एक इम्पोर्टेंट बात, कोई भी एग्जाम्पल ऐसा होगा जिसमें आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा होगा, ओके, एग्जिस्ट कर रहा होगा, बराबर, मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट पॉसिबल होगा, तो उसमें कौन सी मेथड करनी है वो मैं आज आपको ये एग्जांपल में बता देता हूँ. ओके, चलो तो सबसे पहला क्या करना है, जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, बराबर, उसको ए के साथ इक्वल है, बराबर, मतलब ये दो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, फर्स्ट दोनों को हमें ले लेना है. नाउ ए बाई 4 इज इक्वल टू स्मॉल ए, ये दोनों को हमें ले लेना है, इक्वालिटी को हम ले लेंगे, बराबर, मतलब लेफ्ट हैंड साइड को स्मॉल ए के साथ इक्वल में हम ले लेंगे, बराबर, पहले दो को. चलो उसके बाद हम स्मॉल ई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. स्मॉल ई की वैल्यू क्यों फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि स्मॉल ई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट. सो सबसे पहले हमें यहाँ क्या दिखेगा, तो स्मॉल ए दोनों के साइड कैंसिल होगा, तो उसके बाद हमें क्या मिलेगा, ई बाई 4 इज इक्वल टू 1, और जो डिनोमिनेटर में 4 है वो इक्वल के उधर साइड जाएगा. ओके, सो मल्टीप्लाई विथ 1, सो वी गेट ई इज इक्वल टू फाइनली 4. सो यहाँ पे ई इज इक्वल टू कितना मिल रहा है, 4 मिल रहा है, बराबर. अभी यहाँ पे जो स्मॉल ई की वैल्यू मिली हमें, बराबर ना, मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट की जो वैल्यू मिली वो सही में सही है या नहीं, बराबर, सही में सही है या नहीं वो हम कैसे चेकआउट करेंगे. सो जो वैल्यू हमें मिली है वो हम हमारे RHS साइड है ना उसमें पुट कर देंगे, मतलब RHS साइड मतलब EA बाई 4 में हम स्मॉल ई है ना, वहाँ पे हमारा जो आइडेंटिटी एलिमेंट हमने अभी जो फाइंड आउट किया, बराबर, वो वैल्यू हम वहाँ पुट करेंगे. अगर हमें स्मॉल ई मिल जाए वहाँ, बराबर, सो फाइनली वी कैन से दैट द आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट एंड इट इज 4. ओके, चलो तो देखते हैं. RHS इज इक्वल टू EA बाई 4, स्मॉल ई के रिप्लेस में यहाँ पे मैंने 4 पुट कर दिया. सो आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर न्यूमरेटर के 4 कैंसिल. So finally we get small a. That's it. Okay. Therefore, A star E is equal to A is equal to E star A. Hence, star has identity element and it is E is equals to 4. और यहाँ पे हम लिख सकते हैं. Therefore, identity एलिमेंट एग्जिस्ट, बराबर ना, क्योंकि यहाँ पे तो हमारी जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो गई है, इसलिए तब ये हम लिख सकते हैं. therefore आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट, therefore A star is equal to A is equal to E star A, hence star has identity element and it is equal to 4. समझ में आ गया. मतलब अभी इसके बाद हम जितने भी एग्जांपल्स करेंगे उसमें अगर आइडेंटिटी एलिमेंट पॉसिबल है, मतलब मिलेगा, तो हम ये मेथड वहाँ पे करेंगे. कैसे, यहाँ तक तो हमें पता ही है कि ये हमने कंडीशन लिख दी. उसके बाद जो फर्स्ट 2 कंडीशन है, बराबर, फर्स्ट 2 इक्वालिटी वो हम ले लेंगे, और उस तरह से हम उसका यूज करके हम क्या करेंगे, स्मॉल ई की वैल्यू फाइंड करेंगे, मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. और वो जो भी वैल्यू आएगी उसको हम जो राइट हैंड साइड है ना उसमें हम जहाँ ई दिखेगा वहाँ पे हम रिप्लेस कर देंगे, मतलब पुट कर देंगे. और उसको सिंप्लीफिकेशन करने के बाद अगर हमें स्मॉल ए मिल जाए
So finally we can say that the identity element exists. Otherwise, if we do not get small a, if we don't get small a, अगर हमें small a नहीं मिल सकता है, नहीं मिल रहा है, तो then we can say that identity element not exist, or there is no identity element. Understand? Okay. So hence star has identity element and it is e is equals to 4. समझ में आएगा? नंबर 6, a स्टार b इज इक्वल टू a इंटू बी स्क्वायर. यहाँ पे स्मॉल ए अलग डिफरेंट है और बी स्क्वायर डिफरेंट है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन, मतलब स्मॉल ए अलग है और बी स्क्वायर अलग है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन है. चलो हियर स्टार फ्रॉम q क्रॉस q to q is a binary operation defined by a star b is equal to ab square. For commutative, we have to check a star b is equal to b star a. For that, take a is equal to 1 and b is equal to 2. Okay, so a star b is equal to 1 star 2 is equal to, compare with our operation, just put small a is equal to 1 and b is equal to 2. So 1 into 2 square, that means 4, final answer. And b star a is equal to 2 star 1 is equal to 2 into 1 square, so 2. Both are not same. LHS is not equal to RHS. Star is not commutative. For associative, we have to check this one. For take a is equal to 1, b is equal to 2 and c is equal to 3. A star b star c is equal to 1 star 2 star 3. Firstly, we solve 1 star 2. So 1 into 2 square. So answer is 4 with star 3. So 4 star 3 is equal to 4 into 3 square. That means 3 square is equal to 9 into 4, 36. And a star bracket b star c is equal to 1 star bracket 2 star 3 is equal to 1 star 2 into 3 square. 3 square 9, 2s are 18. 1 star 18 is equal to 1 into 18 square. So finally you get 3 to 4. Both are not same. Okay. So LHS is not equal to RHS. Star is not associative. Now finally for identity element, here small e is the identity element of star if a star is equal to a is equal to a star a. That means a e square is equal to a is equal to e a square. Okay. चलो अब यहाँ पे हमारे पास स्मॉल ए की ऐसी कोई वैल्यू है ही नहीं जो हम दोनों साइड पुट करें और हमें आंसर स्मॉल ए मिल सके, क्योंकि अगर आप स्मॉल ए के रिप्लेस में 1 भी पुट करेंगे ना, सपोज 1, तो यहाँ पे तो आपको स्मॉल ए मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है. पर दिक्कत यहाँ आएगी क्योंकि यहाँ पे आप ई के रिप्लेस में 1 पुट करेंगे तो आपको यहाँ पे ए स्क्वायर मिलेगा. लेफ्ट हैंड साइड पॉसिबल नहीं हुआ, दिक्कत नहीं है, आ गया. दिक्कत राइट हैंड साइड है. देखो यहाँ पे स्क्वायर है, ए स्क्वायर, बट हमें क्या चाहिए, स्मॉल ए चाहिए. वो लेफ्ट हैंड साइड हो या राइट हैंड साइड, दोनों साइड से हमें स्मॉल ए ही मिलना चाहिए. बट देयर इज नो पॉसिबल वैल्यू ऑफ ई वेयर ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए मिल सके. हेंस स्टार हैज नो आइडेंटिटी एलिमेंट. आई होप यू अंडरस्टैंड. ओके, शांति से एक बार सॉल्यूशन देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा. ओके, कंटिन्यू. एक्सरसाइज 1.4 11th sum. Let capital A is equal to n cross n and star be the binary operation on capital A defined by A comma B star C comma D is equal to A plus C B comma D. Show that star is commutative and associative. Find the identity element for star on capital A if any. मतलब जो हमें ऑपरेशन दिया है वो किस पर डिफाइंड है, A क्रॉस A पर है. A क्रॉस A मतलब n क्रॉस n क्रॉस n क्रॉस n. मतलब जो ये पहला वाला जो A comma B है ना, तो पहले A में से मतलब n क्रॉस n में से लेना है, बराबर. जो दूसरा वाला C comma D है ना, वो A क्रॉस A में जो दूसरा A है, मतलब यहाँ पे देखो ये A में n क्रॉस n है और यहाँ पे n क्रॉस n है, मतलब ये n क्रॉस n में से हमें A comma B लेना है और यहाँ पे जो n क्रॉस n हो गए ये A का, बराबर, उसमें से हम C comma D लेंगे. और हमारा ऑपरेशन क्या है, एडिशन ऑफ फर्स्ट एलिमेंट एंड एडिशन ऑफ सेकंड एलिमेंट, मतलब A प्लस C B प्लस D. Okay, with the binary operation defined by this one where A is equal to n cross n and ABCD belongs to capital N because ABCD are natural numbers. For commutative we have to prove that. यहाँ पे थोड़ा फोकस करना स्टूडेंट्स. अब तक मैंने क्वेश्चन में क्या लिखा था, वी हैव टू चेक लिखा था, क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्वेश्चन मार्क दिया गया था इसलिए. ओके, वी हैव टू आस्क. ओके, हमें आस्किंग किया था. ओके, दे आर आस्किंग अस दैट check whether star is commutative or not. That's why we take here check. But now I take prove that because we have to show that. हमें क्वेश्चन में बोला था कि आप हमें प्रूफ ही करना है, इसलिए यहाँ पे मैंने प्रूव दैट ले लिया. A स्टार B A कॉमा B स्टार C कॉमा D इज इक्वल टू C कॉमा D स्टार A कॉमा B, मतलब A स्टार B इज इक्वल टू B स्टार A हमें चेक करना है, आप प्रूफ करना है. सबसे पहले मैं लेफ्ट साइड ले लेता हूँ. A कॉमा B स्टार C कॉमा D बाय द डेफिनेशन ऑफ बाइनरी ऑपरेशन वी मे राइट
ए प्लस सी कॉमा बी प्लस डी। अब हम दूसरी साइड से देख लेते हैं, एंड सी कॉमा डी स्टार ए कॉमा बी इज इक्वल टू, हमें क्या मिलेगा आंसर, बाय द डेफिनेशन ऑफ बाइनरी ऑपरेशन वी हैव टू राइट सी प्लस ए कॉमा डी प्लस बी। ओके, चलो अभी आप 1 + 4 करेंगे या 4 + 1 करेंगे, आपका आंसर 5 ही मिलेगा। 1 + 4 या 5, 4 + 1 करेंगे तो आपका आंसर 5 ही मिलेगा। सिमिलरली आप ए सी प्लस ए करेंगे या ए प्लस सी करेंगे, आपका आंसर सेम ही मिलेगा। सो यहाँ पे सी प्लस ए के रिप्लेस में मैं ए प्लस सी लिख सकता हूँ, और यहाँ पे बी प्लस डी के रिप्लेस में डी प्लस बी के रिप्लेस में बी प्लस डी भी लिख सकता हूँ। तो अगर आप दोनों साइड का जो आंसर है वो कंपेयर करेंगे तो दोनों आंसर सेम है। दैट मीन्स ए कॉमा बी स्टार सी कॉमा डी इज इक्वल टू सी कॉमा डी स्टार ए कॉमा बी, एंड स्टार इज कम्यूटेटिव। Similarly, for associative, we have to prove that in the bracket a comma b star c comma d, ब्रैकेट के बाद स्टार x कॉमा वाई इज इक्वल टू a कॉमा b स्टार ब्रैकेट में b c कॉमा d स्टार x कॉमा वाई। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड की बात कर लेते हैं। इन द ब्रैकेट a कॉमा b स्टार c कॉमा d और ब्रैकेट के बाद x कॉमा वाई। सबसे पहले जो ब्रैकेट का टर्म है ना, उसका आंसर हम क्या लिख सकते हैं, बाय द डेफिनेशन ऑफ बाइनरी ऑपरेशन वी मे राइट a प्लस सी कॉमा b प्लस डी स्टार x कॉमा वाई तो है ही। तो अभी यहाँ पे हमारा ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो ये सपोज इसको आप ए समझिए, इसको बी समझिए, तो ए कॉमा बी स्टार एक्स कॉमा वाई है। अगर हम हमारे ऑपरेशन के साथ कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे आंसर क्या मिलेगा, ए प्लस एक्स, मतलब ए प्लस सी प्लस एक्स मिलेगा, और इसको हम बी सपोज करेंगे तो बी प्लस वाई, दैट मीन्स बी प्लस डी प्लस वाई मिलेगा। समझ में आ गया? ओके, फर्स्ट एडिशन ऑफ फर्स्ट एलिमेंट एंड एडिशन ऑफ सेकंड एलिमेंट। सो RHS हमें ये मिला। अभी हम लेफ्ट हैंड साइड हमें ये मिला, अभी हम राइट हैंड साइड देखेंगे। एंड ए कॉमा बी स्टार ब्रैकेट में सी कॉमा डी स्टार एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू ए कॉमा बी, वो तो 12 एज इट इज होंगे, उसको हम अभी कुछ नहीं करेंगे। स्टार अभी यहाँ पे हमारे अप्लाई करेंगे हमारा ऑपरेशन, तो फर्स्ट एलिमेंट एडिशन ऑफ एंड एडिशन ऑफ सेकंड एलिमेंट, दैट मीन्स सी प्लस एक्स डी प्लस वाई। चलो सेम वो फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे हमारा ऑपरेशन। सो हमें क्या मिलेगा, एडिशन ऑफ फर्स्ट एलिमेंट एडिशन ऑफ सेकंड एलिमेंट, सो वी गेट ए प्लस सी प्लस एक्स बी प्लस डी प्लस वाई। अगर आप दोनों साइड फोकस करेंगे तो दोनों साइड का जो आंसर है वो सेम है। इसका मतलब क्या है कि LHS इज इक्वल टू RHS, दैट मीन्स स्टार इज एसोसिएटिव। अंडरस्टैंड? कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव तो थोड़ा इजी था, इसे समझ में आ गया। अभी हम बात करते हैं किसकी, फॉर आइडेंटिटी एलिमेंट। चलो इसके लिए सबसे पहले हमारी जो कंडीशन है वो हम लिख देते हैं, फॉर दिस बाइनरी ऑपरेशन हियर स्मॉल इज इक्वल टू u1 e2। क्यों u1 e2 हमने लिया, क्योंकि हमारा जो ऑपरेशन है ना वो पेयरिंग में है। समझ में आ रहा है? ए स्टार बी नहीं है, सिंपली ए स्टार बी नहीं है, a1 b स्टार a b स्टार c d में है, इसलिए बराबर। मतलब जो हमारा स्मॉल ई होगा वो भी हमारे e1 e2 में होगा। तो हियर इज इक्वल टू e1 e2 इज द आइडेंटिटी ऑफ स्टार इफ a1 b स्टार a1 e2 इज इक्वल टू ab इज इक्वल टू a1 e2 स्टार ab। अभी आप यहाँ पे ए आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ए स्टार ई इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ई स्टार ए। वही हमारी जो मेन कंडीशन है वही है, पर यहाँ पे मैंने पेयरिंग में लिखा है, बराबर। पेयरिंग में मतलब a बी स्टार e1 e2 इज इक्वल टू में, मतलब जो आंसर है ना वही मिलेगा, ए स्टार ए के साथ ए ही आंसर मिलेगा और ए स्टार ए के साथ ए ही आंसर मिलेगा। हा? इसका मतलब क्या होगा, तो एडिशन ऑफ फर्स्ट एलिमेंट द डेफिनेशन ऑफ, तो हमें क्या मिलेगा, ए प्लस ई1 बी प्लस ई2 इज इक्वल टू ए कॉमा बी ई1 प्लस ए कॉमा ई2 प्लस बी। ओके, चलो ये इक्वल, ये जो पेयर है और ये पेयर दोनों के इक्वल हमें ए कॉमा बी मिल जाए, तो फाइनली वी कैन से दैट मतलब जो भी हमारी e1 और e2 की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे और हमें सिर्फ सिंपली ए कॉमा बी मिलेगा, तो हम फाइनल कह सकते हैं कि हमारा जो भी आंसर आएगा वो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। फॉर दैट अभी यहाँ पे हम डायरेक्ट एज्यूम नहीं कर सकते, मतलब डायरेक्ट हम फाइनलाइज नहीं कर सकते ना कि कौन सी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, मतलब लिख सकते हैं, लिख भी सकते हैं, पर हम क्या करेंगे, हम जिसमें हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट कंफर्म आएगा उसमें जो मेथड हमने किया था वो मेथड हम यहाँ पे करेंगे। मतलब क्या करेंगे, हम ये फर्स्ट दो पेयर को इक्वली हम ले लेंगे, मतलब ये दोनों को हम ले लेंगे। मतलब नाउ
ए प्लस ई वन इज इक्वल कॉमा बी प्लस ई टू इज इक्वल टू ए वन ए कॉमा बी। तो ये फर्स्ट इक्वालिटी हमने ले ली, फर्स्ट दो इक्वालिटी। चलो अब हम क्या, आपको पता ही है कि बीच में इक्वल का साइन है और पेयर्स है दोनों के साथ, तो मतलब फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट की इक्वालिटी हमें मिलेगी, बराबर ना। ये फर्स्ट एलिमेंट और इक्वल का ये फर्स्ट एलिमेंट, ये दोनों सेम होंगे, और ये एलिमेंट दोनों सेम होंगे। सो कंपेयरिंग वी गेट ए प्लस ई वन इज इक्वल टू ए एंड बी प्लस ई टू इज इक्वल टू बी। मतलब यहाँ पे क्या कैंसिल आउट होगा, स्मॉल ए कैंसिल आउट होगा और यहाँ पे स्मॉल बी कैंसिल आउट होगा। So finally we get E1 is equal to 0 and E2 is equal to 0. But this is not possible because 0 does not belongs to capital N. 0 is not a natural number. Understand? मतलब यहाँ पे 0 तो हमारे सेट में है ही नहीं, क्योंकि हमारा कैपिटल N है सेट, बराबर। वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, मतलब वहाँ से नंबर 1 2 3 4 ऐसे नंबर्स आएंगे, 0 तो नहीं आएगा। एंड स्टार डज नॉट हैव एनी आइडेंटिटी एलिमेंट बिकॉज एक 0 ही ऐसा नंबर था जो हम यहाँ पे हमारा जो ये फाइनल जो डेफिनेशन हमने बनाया था आइडेंटिटी के लिए हमने लिखा था, बराबर। उसमें आप 0 पुट करेंगे ना, यहाँ पे 0 यहाँ पे 0, दोनों के साइड 0, तो आपको ए कॉमा भी मिल सकता है, बराबर ना। पर 0 हम नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते, बिकॉज 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, दैट्स वाई यहाँ पे लिखा है दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज 0 डज नॉट बिलोंग्स टू एन एंड स्टार डज नॉट हैव एनी आइडेंटिटी एलिमेंट। समझ में आ गया। ये सबसे पहले तो हमने कंडीशन ले ली, पेयरिंग में ली। क्यों पेयरिंग में ली, क्योंकि हमारा जो ऑपरेशन है वो है ही इस तरह का, बराबर ना। पेयरिंग वाला ही हमारा ऑपरेशन है, इसलिए मतलब हम स्मॉल ई नहीं ले सकते। स्मॉल ई के रिप्लेस में हम E1 कॉमा E2 मतलब पेयरिंग में ले सकते हैं। इज द आइडेंटिटी ऑफ स्टार इफ ए कॉमा बी स्टार E1 कॉमा E2 इज इक्वल टू ए कॉमा बी इज इक्वल टू E1 कॉमा E2 स्टार ए कॉमा बी। अभी हम डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू आवर डेफिनेशन वी में राइट क्या लिख सकते हैं, एडिशन ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, एडिशन ऑफ सेकंड एलिमेंट, ए प्लस E1 इज इक्वल टू कॉमा बी प्लस E2 इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू E1 प्लस ए E2 प्लस बी। चलो उसके बाद हमने फर्स्ट दो इक्वालिटी को हमने ले लिया, तो यहाँ पे लिख दिया। अभी बीच में इक्वालिटी है और दोनों साइड क्या है, पेयर है, मतलब दोनों साइड के फर्स्ट एलिमेंट और दोनों साइड के सेकंड एलिमेंट क्या होंगे, इक्वल होंगे। सो कंपेयरिंग इक्वालिटी वी गेट ए प्लस E1 इज इक्वल टू ए, बी प्लस E2 इज इक्वल टू बी, बी कैंसिल, ए कैंसिल, तो हमें फाइनली E1 और E2 का आंसर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। बट दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज 0 डज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल एन एंड स्टार डज नॉट हैव एनी आइडेंटिटी एलिमेंट। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ओके, चलो एक बार देख लो। चलो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आज हम स्टूडेंट्स इतने ही समझ करेंगे। मैंने बोला था कि नेक्स्ट में हमारा इन्वर्स स्टार्ट हो जाएगा, लास्ट टॉपिक बाइनरी ऑपरेशन का लास्ट टॉपिक, पर आज थोड़ी नहीं हो पाएगा, पर नेक्स्ट लेक्चर में कंपलसरी हम इन्वर्स स्टार्ट कर देंगे। ओके, अभी मे बी 2 लेक्चर्स जाएंगे ऐसा लग रहा है, बराबर। 2 लेक्चर्स में भी हो गए हमारे फर्स्ट चैप्टर के लिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। इन्वर्स जो हमें एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स आइडेंटिटी पर, ये हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट था, ऐसे हमारा एक इन्वर्स वाला लास्ट टॉपिक है, उसके लिए हम नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। ओके, तब तक ये सब देख लेना, एक बार रिवीजन कर लेना और लिखते रहना, समझते रहना। ओके, थैंक यू।